In a strong display of environmental activism, more than 200 people, including political leaders from various parties, students, senior citizens and members of the Shilpi Samaj, formed a human chain in Guwahati's Tikalipukri on Saturday to protest against deforestation in the name of development. The protesters raised concerns over the Assam's government alleged plans to fell decades-old trees for a flyover project. They urge authorities to pursue development without compromising the environment, chanting slogans like "Do development, don't destruct," and holding placards bearing environmental messages. The protest saw participation from people across different walks of life. Protesters sang songs, shouted slogans against the state government, and demanded immediate action to hold the tree cutting activity. Environmental groups claim that over 100 trees, many of them over several decades old, are at risk of being cut down if the flyover project moves forward. They also warned that the removal of green cover has already contributed to the rising temperatures in the city. Speaking to the media, one protester said the government must understand and respect both the people and nature. They had earlier assured the court that they would not cut down or translocate trees, but now they have gone against their own commitment. The flyover was supposed to end at a different location away from this area, but now they have extended the project and are targeting this green zone. We will continue to oppose this. As of now, local authorities have not issued any official response regarding the protests of the concerns raised by the demonstrators. गुवाहाटी महानगरी से गस कटा बंद करो स्थानान्तरण नामत प्रशिक्षण नचलिब असम सरकार के द्वारा डेवलपमेंट के लिए या फ्लाईओवर बनाने के लिए जो पेड़ की काटछाँट कर रही है, उसके लिए गुवाहाटी के सिटीजन इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स, स्टूडेंट्स निकल के आए हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एकजुट हुए हैं। ह्यूमन चेन एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, इतने सारे लोग एक साथ आकर के पेड़ की काटछाँट की अगेंस्ट में ये लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। मैं डाटा से थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे। ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इससे भी पहले बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट किया, पॉलिटिकल लीडर हो या आम आदमी हो, प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार सुना नहीं। अभी आप क्या करेंगे? See, that is the problem. You see, now everybody understand what is global warming is. See, if a plant is alive, then the human race is alive. It is very simple logic. Everybody understand, but one man, he doesn't understand, and he is the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sharma. He doesn't bother anyone, and whatever he thinks it is right, and he just go as a demolition man. लेकिन सिटी को सजाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ पेड़ को काटना भी पड़ सकता है। इसमें आप क्या कहेंगे? ना, वो तो डेफिनेटली सिटी को बसाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए तो ये सही है। साथ साथ ये जो ह्यूमन रेस, इसको जिंदा रहने के लिए भी ये प्लांट्स रहना जरूरी है। और कुछ पेड़ों को रिलोकेट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, वो क्या जिंदा बसेंगे, नहीं बसेंगे, क्या? सी रिलोकेशन ये जो है इन अदर कंट्रीज, हम देखा चाइना और अदर कंट्रीज में ये रिलोकेशन होता है, लेकिन हाँ असम में आई थिंक ये पहले बार ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कितना कामयाब होगा या नहीं होगा, ये इससे एक बड़ा डाउट है। हाँ, सो एंड रिलोकेशन के लिए भी वो 50% ऑफ द प्लांट्स वो कटाई किया है, तो इसका क्या मतलब रह गया रिलोकेशन का? और बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग अगेंस्ट में आ गए हैं। तो सरकार जो काम कर रहे हैं,
ये जो पेड़ की काटती चल रही है, निसर्ग को विनष्ट कर रहे हैं, लोगों को कहना है। और भी डाला से भी बात करते हैं। तो आप लोग ये ह्यूमन सेन जैसा एक प्रोटेस्ट करने लगा और असम सरकार आप लोगों की ये जो ह्यूमन सेन आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों की बातें सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। सरकार को हम लोग सुना है, तो हम लोग का बात वो सुनना पड़ेगा। नहीं सुनने से नहीं होगा। उसको आज उन्होंने भी सरकार वार्निंग दिया है। आज इतना जनता खड़ा होकर रोड में, ये उसको सुनना पड़ेगा। हम लोग का बात बस कितना जो करा है वो ही शुड स्टॉप इट एंड ही शुड प्लान थ्री दैट इज आवर ओनली डिमांड, नथिंग एल्स। तो ये इन लोग को कहना है कि सरकार को ज़रूर सुनना चाहिए, और सरकार नहीं सुनेंगे तो वो लोग इससे भी बड़े पैमाने पे वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आइए थोड़ा आगे मैं दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आदमी का बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर का साथ साथ स्टूडेंट्स और गुवाहाटी के जो सिटीजन्स हैं सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पेड़ की काटती के विरोध में। आइए बाइडो से भी जानते हैं। आप लोग पहले भी आप लोग को देखा गया कि इस तरह के प्रोटेस्ट किया था पहले भी, लेकिन सरकार नहीं सुना। लेकिन अभी आप लोग फिर से ह्यूमन सेन जैसा एक प्रोटेस्ट। अभी हम लोग का जो गवर्नमेंट है असम में, बीजेपी गवर्नमेंट, जो सीएम है वो तो अपना ही सुनता है, किसी और का नहीं सुनता है। अभी आज हम लोग यहाँ में इकट्ठे हुए हैं इसीलिए जो पेड़ सब काट रहे, नेचर को ख़त्म कर रहे वो लोग। नेचर को ख़त्म करके कोई डेवलपमेंट नहीं होता। ये छोटा छोटा बच्चा भी, उन लोग को भी पता है, लेकिन नेचर को ख़त्म करके कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। आज का जो असम में डेवलपमेंट है वो एक ही काम, एक ही है उसका, एक ही मतलब है, मतलब मुनाफा। जो कमीशन राज है वो कमीशन राज है। कमीशन राज के बेस पे वो लोग हर जगह में ब्रिज बना रहे हैं। अभी गुवाहाटी सिटी में ब्रिज बना रहे हैं और ब्रिज के कारण वो लोग सब पेड़ काट रहे हैं, गाछ ये सब काट रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आप डेवलपमेंट कीजिए, डेवलपमेंट सबको चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि नेचर को ख़त्म करके आप लोग डेवलपमेंट कीजिएगा। ये अगर नेचर नहीं रहेगा तो मानव जाति का क्या होगा? इसीलिए हम लोग हाँ, प्रोटेस्ट का जो मेन थीम है कि इन लोगों का कहना है कि नेचर को ख़त्म नहीं करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ की काटौती चल रही है इसको रुकना चाहिए। मैं गुवाहाटी से नकुल चंद्राभा, हॉर्नबिल।